member and CVO Coal India Limited, Shri Brijesh Kumar Tripathi sir. At the outset, let us all welcome him with a huge round of applause. Sir, thank you so much for sparing your valuable time. Shri Brijesh Kumar Tripathi sir, IRSC 1996 exam batch, has assumed the charge of Chief Vigilance Officer, Coal India Limited on November 16, 2022. He did Bachelor's of Engineering, Civil from MNREC Allahabad and Masters of Technology from IIT Delhi. Before joining Coal India Limited, he served in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway. Earlier, he was instrumental in many vigilance reforms and system improvements while working as Chief Vigilance Officer in Eastern Railway. Shri Tripathi has vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects as well as maintenance and operation of major infrastructure. He has expertise in the matters related to establishment, budget, tenders and contract management, and under his able leadership, Coal India Limited has been soaring new heights. Sir, at present in this hall we have around 104 management trainees mining who are undergoing technical skill development program here at IICM, which is for 10 training days. Apart from these young and energetic management trainees who have joined from various subsidiaries, we are also joined by around 30 participants of the capacity building training program. They have also joined us from almost all the subsidiaries including Coal India Limited headquarters, and all of them belong to the personal discipline. Dear participants, CVO sir is here to take a session for all of you on preventive vigilance in HR. So let us all be attentive and focus on his session. With due respect, I request sir to kindly come up to the podium and address the gathering for the session on preventive vigilance in HR. Thank you so much. Preventive vigilance on HR. Preventive vigilance की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरा मानना है कि कहीं पर भी कहीं कोई, जैसे कोविड पीरियड में देखिएगा, अराउंड 90% लोगों को पता भी नहीं चला कि उसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। अराउंड 5 to 8% लोगों को कोविड हुआ, ट्रीटमेंट करना पड़ा, फिर वो ठीक हो गए। 2 से 3% लोग ऐसे थे कि कोविड का जब महामारी आया, बीमारी पकड़ा, तो वो बच नहीं पाए। यानी अब इस एग्जाम्पल को लेकर के बोलना चाहता हूं कि जो बच नहीं पाए वो लिखे, प्लस डॉक्टर्स थे जो कि आकर ट्रीटमेंट किए तो बचा पाए 7 से 10% लोगों को, और बाकी जो इम्यून थे पूरी तरह से, जिनको कुछ असर भी नहीं हुआ, दैट इज अपने आप में उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। अब मैं यहां पर आप लोगों को ये बताने आया हूं कि डॉक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो आदमी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, यदि हम हर तरह से आइडियल हैं, परफेक्ट हैं, इथिकल मैनर में, मोरल वैल्यूज में, इंटीग्रिटी में, ऑनेस्टी में, तो कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी माहौल या कोई भी बॉस या कोई भी सिस्टम हमको खराब नहीं कर सकता, हमको डिसऑनेस्ट नहीं बना सकता। तो मैं अपने कोल इंडियन को ये बोलने आया हूं कि अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग रखो कि कोई भी सिस्टम आपको हिला ना पाए। दूसरा, एक ये भी हो सकता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत अच्छा हो। बहुत ऐसे जगह था लोकेशन जहां पर उसका स्वच्छता, हमारा कोल IICM की बात हो रही थी कि यहाँ पर स्वच्छता और इस समय यहाँ का जो माहौल है इतना साफ सुथरा है कि बीमारी बहुत जल्दी नहीं पकड़ने वाला है। यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन नीट एंड क्लीन हो। यदि कोई बात कर रहा है क्या? हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना नीट एंड क्लीन हो कि हम यदि करप्ट वाली भावना से या हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तब भी हम यदि वहां जाते हैं तो वहां इतना सब कुछ सिस्टम अच्छा है कि हम अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। यानी हम या तो आइडियल रहे, अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन आइडियल रहे, लेकिन दोनों में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी आइडियल हो। यही कारण है कि क्योंकि वहां पर भी कमजोरी होती है, हमारे ह्यूमन बीइंग में भी कमजोरी होती है। यही कारण है कि हमको विजिलेंस डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, क्योंकि हम लालच में पड़ जाते हैं और करप्शन करते हैं। या हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का सिस्टम माहौल रहता है,
वहाँ कुछ लूप होल होता है या कमी होती है तो हमको करप्शन करना चाहता है। तो इसको हम प्रिवेंटिव वे में रखें, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव विजिलेंस। यदि हमारा सिस्टम इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिएगा ट्रैफिक पुलिस में यदि सब कुछ एकदम आइडियली चलाएं गाड़ियां तो फिर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह से यदि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहे, या तो हम ठीक रहे चाहे हमारा कंपनी ठीक रहे, या दोनों ठीक रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, आइडियल वे में आइडियल नहीं होता है, इसलिए हमको विजिलेंस डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, इसलिए प्रिवेंटिव विजिलेंस का काम करना पड़ता है। मैं आपको ये बताने आया हूं, माय डियर कोल इंडियंस, हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी के लिए आए हैं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले भी हैं। ये नीडर बनो, डरना नहीं है। हम डरेगा नहीं ये मिशन बना के चले। हमको जो काम पकड़ाएंगे मैं वो करूंगा, ऐसा मान के चलो। मैं रेलवे ऑफिसर हूं, अभी डिप्यूटेशन में कोल इंडिया में आया हूं। मैं इंजीनियरिंग किया, मैं क्लास 6 में मैडम टॉप कर गया था। जब पढ़ने में अच्छा था तो घर वालों ने बहुत अच्छा से पढ़ाया, संस्कार अच्छा मिला। जब सब अच्छा मिलने लगा तो फिर मैं और क्वालिफाई किया और सिलेक्शन हो गया, अच्छा हो गया। और क्लास 1 सर्विसेज यूपीएससी से रैंक अच्छी थी तो रेलवे मिल गया। ठीक उसी तरह से आज के दिन में कोल इंडिया में या किसी भी पब्लिक सेक्टर में वही आता है जो जीनियस है, जो मेहनती है, जो संस्कारवान है, जिसके अंदर काम करने की, संघर्ष करने की क्षमता है। मैं अब आज उल्टा बोलने वाला हूं कि कोल इंडिया लकी है कि ऐसे होनहार को, ऐसे संघर्षवान को, ऐसे आइडियल पर्सन को, ऐसे मेहनती आदमी को, ऐसे जीनियस को पाया है। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है, माय डियर कोल इंडियंस। अब मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि आप अपना लाइफ का मिशन ये मत बनाइए कि हम कुछ पैसा कमा लें या कुछ नेम एंड फेम कमाएं। आप अपने लाइफ का गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। सवेरे मैं बोल रहा था कि यदि हमारा कंपनसेट अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है तो हम ऐसा कुछ परिवर्तन करें कि डिले पर अटैक हो। आप ऐसा कुछ काम करिए, ऐसा कुछ परिवर्तन कीजिए। माइनिंग में जा रहे हैं, वहां कुछ खराबियां हैं, आप परिवर्तन बनाना लक्ष्य बनाइए। आप ऑनेस्ट हैं, आप आइडियल हैं, आप जीनियस हैं, आप संघर्षवान हैं। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आप कोल इंडिया में आइए और कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए, डरिए मत। आपका लक्ष्य याद रखिए, लक्ष्य है परिवर्तन करना। कोल इंडिया में आइए और टकराइए। यहां आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अच्छाइयां मिलेंगी, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। यहां पर भी आपको बहुत सारी बुराइयां मिलेंगी। आप आए हैं, कोल इंडिया ज्वाइन किए हैं, कोल इंडिया लकी हैं, तो उस बुराइयों पर अटैक कीजिए, उसको परिवर्तन कीजिए, उसको चेंज कीजिए, उसको अच्छा कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। कहीं कुछ लूप होले तो उसको ठीक कीजिए। आप जैसे ही किसी बुराइयों को, करप्शन मैटर हो या उदासीनता हो या लैक ऑफ वर्किंग कल्चर हो या जो भी हो, जैसे आप उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर माय डियर फ्रेंड एक से एक दिग्गज मिलेंगे जो आपको रोकेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है। आप अपना लक्ष्य भूलिए मत, आपको परिवर्तित करना है। आपका पर्पस है, लक्ष्य है परिवर्तन करना। आप अटैक कीजिए, वो लोग अपोज करेंगे आपको, लेकिन आप डरिए मत, जाइए और उसको सुधार कीजिए। एज ए सीबीओ में बोलने आया हूं कि आप एज ए विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम कीजिए। मैं बोलता हूं हमारा हर कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। आप विजिलेंस ऑफिसर रहिए, खुद सतर्क रहिए। आप सतर्क रहिए, आप अपने कलीग को सतर्क रखिए। जब कलीग को सतर्क रखेंगे तो पूरा वो डिपार्टमेंट आपका, वो पर्टिकुलर ऑफिस आपका सतर्क रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा।
फिर उसके बाद आप देखिएगा सबसे आपका एरिया सतर्क होगा, करप्शन फ्री रहेगा, फिर सबसे CIL में आपका रहेगा। और ऐसे करते करते हम लोग पूरा कोल इंडिया को करप्शन फ्री बना पाएंगे। मेरा यहां पर आज के डेट में 139 दीपक है। इतने हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं यहां पर। ये जब पूरा इंडिया के कोने कोने में जाकर जब जलेगा, जब दीपक जलता है तो क्या होता है? अंधेरा भागता है। जब दीपक जलता है तो अंधेरा भागता है। आप दीपक बनिए। मेरा हर कोल इंडियन एक दीपक है। जब आप जलिएगा तो अंधेरा भागेगा। वहां के जो मैं उनको बोलता हूं मोटी चमड़ी वाले, और नया नाम अभी दिया हूं मैं मोटा भाई। हर ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा कहीं ना कहीं एक मोटा भाई होता है जो अपने तो गलती करता ही है, नीचे वालों को फोर्स करता है कि गलत करो। वो सिस्टम को खराब करके रखता है। उससे डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। डरना है तो केवल अपने आप से डरना है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जो हमको असाइनमेंट दिया गया है उसमें कहीं कमी न रह जाए। जिस कर्म के लिए हम आए हैं, जिस परिवर्तन लक्ष्य बनाकर आए हैं, उसमें कुछ कमी न हो जाए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए कि आप दीपक बनिए, विजिलेंस ऑफिसर बनिए और कोल इंडिया का हर कोने कोने में जाइए और वहां से अंधेरा दूर भगाइए, करप्शन को दूर भगाइए। एक और मैंने विडंबना देखा, मैं भी विजिलेंस ऑफिसर हूं। जब आप अंधेरा भगाने की बात करेंगे या करप्शन भगाने की बात करेंगे तो वहां पर आपको लोग अपोज करेगा। विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है कि विजिलेंस इज नॉट लाइक बाई ऑनेस्ट पर्सन, नॉट लाइक बाई करप्ट पर्सन एज वेल एज ऑनेस्ट पर्सन। यानी हमको तो, मैं सीवीओ हूं, तो जो करप्ट है वो तो हमको लाइक नहीं करता है। फैक्ट ये भी है कि ऑनेस्ट भी हमको नहीं लाइक करता है। ये समाज का बना हुआ है। हमेशा पता नहीं क्यों अलग तरह के निगाह से लोग देखता है। जब आप दिया बन के जाइएगा, जब अंधेरा भगाने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां जो अंधेरा में रहना चाहता है, जो अपना कुकर्म करते रहना चाहता है, जो कारनामे करते रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप वहां जले। वो आपको दुश्मन मानेगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको डरना नहीं है, निडर बनिए। एक मैं कहीं कविता पढ़ा था कि दिया का तो दुश्मन अंधेरा होना चाहिए। यानी सीवीओ का दुश्मन जो करप्ट है वो होना चाहिए, लेकिन उससे ऑनेस्ट भी लाइक डिसलाइक करता है। यानी दिया को डरना चाहिए, दिया अंधेरा को डरना चाहिए दिया से, लेकिन उसको बुझाता कौन है? आपको बताया था ना कि एक अकेला चिराग बहुत सारे आधियों पर भारी है। यानी दिया का विडंबना देखिए, डरना चाहिए अंधेरा को, लेकिन बुझाता है उसका हवा। ये विडंबना है। उसमें मैंने कविता बनाया था। मैं रेलवे में भी बिजनेस में था। तो मेरा नाम ब्रजेश है, मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। मैं हर कोल इंडियन को दीपक मानता हूं, बिजनेस ऑफिसर मानता हूं। आप हैं, मैं भी बिजनेस ऑफिसर हूं, मैं दीपक हूं। मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, एक जला के। मतलब जो हवा है, जो ऑनेस्ट लोग हैं, मैं मैडम आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक दीपक यहां पर भी जलना चाहिए, ISM में भी जलना चाहिए, हर माइंड के कोने कोने में जलना चाहिए। आप एक जला के दिखाइए, खाली बुझाने से काम नहीं चल रहा है। मैडम हमको पिछले बार जब आया था तो मैडम बोल रही थी कि हम लोग कुछ लोगों को ट्रेनिंग में भेजे थे कहीं पर, वहां जाके वो कोल इंडिया की शिकायत करने लगे कि वो कोल इंडिया में ये खराबी है, कोल इंडिया में ये खराबी है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज और ध्यान रखना, इंटीग्रिटी की जब बात आती है तो अब बात आता है नाम नमक निशान का। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका नाम ऊंचा होना चाहिए।
जो आपको सैलरी दे रहा है, जिसका नमक आप खा रहे हैं, उस नमक का कीमत अदा होना चाहिए। और निशान यानी कोल इंडिया का लोगो, अभी लोगो भी चेंज हो गया, देखिए कोल इंडिया का लोगो, कोल इंडिया का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, ऐसा हमको काम करते रहना है। यदि आपको हिम्मत है तो कहीं आप जा रहे हैं तो वहां जाकर के कोल इंडिया की अच्छाइयां बताइए। कोल इंडिया की बुराइयां बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दीपक हैं, आपका लक्ष्य परिवर्तन करना है। तो जो बुराइयां हैं वो कोल इंडिया में यहां आइए, उस बुराइयों को दूर कीजिए। मैंने बताया कि लीडर बनिए, आपका काम है कि बुराइयों को दूर करें। हम यहां पे जो भी मोटा भाई है या मोटी चमड़ी वाला है, उससे आप टकराइए। कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप जेल भिजवाएंगे, अच्छा उसको बिजनेस केस में लाएंगे। देखिएगा रोक टोक में भी बहुत पावर होता है। अब डेली टोका कीजिए, देखिए उसी का असर पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में देखिएगा 2 से 3% ऐसे होते हैं जो खाली करप्शन करते हैं। हमारे पास यदि n नंबर ऑफ कंप्लेन आता है तो उसका भी मैंने सर्वे किया कि चार्जशीट हम 2 से 3% लोगों को दे पाते हैं, क्योंकि बाकी या तो एडमिनिस्ट्रेटिव को हो जाता है या तो ऐसे ही फॉल्स कंप्लेन आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3% हैं जो बिना इंजेक्शन के, बिना चार्जशीट के नहीं सुधरने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीबीसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2004 में, दैट इज कॉल्ड पीडीपी रेजोल्यूशन। वो पीडीपी रेजोल्यूशन में ऐसा है कि आप किसी के बारे में कंप्लेन कर दीजिएगा और किसी हमको भी भनक नहीं लगेगा कौन कंप्लेन किया है। यानी दाहिना हाथ कंप्लेन करेगा, बाएं हाथ को नहीं पता चलेगा। मतलब हमारा स्टेनो हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन कर देगा, पता चला कि हमको पता नहीं चलेगा कि कौन कंप्लेन किया है। उसका पॉलिसी है, गूगल बाबा में सर्च कर लीजिएगा, कि उसको सीधे सीबीसी को ही रिपोर्ट करते हैं और सीबीसी सारा कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है हाइड करके। फिर वो जरूरत पड़ता तो सीबीआई को भेजता है, चाहे कंसर्न सीबीओ को भेजता है, और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। और खुशी की बात यह है कि उस पीडीपी कंप्लेन जब से हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं पिछले 1.5-2 साल से, एक से एक क्वालिटी कंप्लेन आ रहा है। यानी जो कंप्लेन आ रहा है साथ में वो सारा डॉक्यूमेंट भी लगा के दे रहा है कि देखिए ये घोटाला हुआ है। क्योंकि उसको पता है कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो पता चला कि उसका बॉस चाहे उसका जूनियर वही कंप्लेन कर दिया है। हमको भी जानने की हम कोशिश नहीं करते जानने का। यदि रूल ये भी है, यदि सीबीओ को या किसी को पता चल गया तो उसको और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। तो इस पीडीपी का रेजोल्यूशन के माध्यम से आप कंप्लेन कीजिए। कोई बोलने लगा करे आप तो ऐसा कर दिए कि डर लग रहा है कि कागज साइन करने में चाहे कुछ भी करने में, तो बोले कि आप ऐसा काम करते ही क्यों है जो डर लगे। देखिएगा, सत्य की हमेशा इच्छा होती है कि उसको सब जाने। सत्य की इच्छा होती है उसको सब जाने, पूरा दुनिया को प्रचार प्रसार करे कि हाँ सही है सही है। मैडम आपके बारे में जो बोल रहा था वो सत्य था, फैक्ट था। उसको सब चाहता है कि हाँ यहाँ पर फ्लावर है, सफाई है, जो भी है। और जो असत्य है उसको हमेशा डर रहता है उसको कोई जानने ना पाए। मतलब हो गया जो असत्य है, जो करप्ट है। आपको देखिएगा कि जो करप्ट होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं ऑफिस में, वो रात में नींद अच्छी नहीं आती है। भले वो करोड़पति बन जाए, लेकिन अच्छा वो ऑनलाइन वाला पेमेंट करके वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो असत्य के हमेशा ये डर रहता है कि हम कहीं पकड़े न जाए। तो ये आपको मान के चलना है कि सत्य का साथ देना है। असत्य यदि डरा हुआ है तो उसको हमको पीडीपी का इंजेक्शन देना है। पीडीपी का यूज कीजिए। तो हमको टोकना पड़ा कि आप ऐसा काम करते ही क्यों है। दूसरा, मैं हमेशा सबको ये बताता हूं, चाहे सोसाइटी वाले हो चाहे सोशल वाले हैं, कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो भ्रष्टाचार करता है ना, मोटा भाई, वो जो मोटी चमड़ी वाला है, वो अपने आप में वो भला आदमी नहीं होता है। तो सत्य ये भी है कि हम जब पीडीपी रेजोल्यूशन से कंप्लेन किए हैं तो अननेसेसरी शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने कंप्लेन किया उसको चार्जशीट हो गया। तो चुपचाप कंप्लेन कीजिए और उसको चेंज मत कीजिए, फॉलो अप मत कीजिए, सीबीसी को लिखिए मत कि क्या हुआ कैसे हुआ। और चुपचाप यदि उसको चार्जशीट हुआ या नौकरी से गया, हाथ धो लिया, तो कभी शाबाशी नहीं देने की होता है कि मैंने उसको कंप्लेन किया तो क्या, क्योंकि खराब लोग खराब होते हैं। मैं जब भी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोलता हूं
तो मुंह पर थोड़ा ढक के बोलता हूं, डरता हूं। लेकिन ये भी सोचता हूं कि यदि मैं आज चुप रहूंगा, जिस पोस्ट पर हूं इसके चलते नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि हम आज चुप रहें, भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ ना बोले, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आप हैं, हमको कायर बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे। तो ये ब्लेम लेने से अच्छा है कि कम से कम आज मैं शोर मचाऊं, आज हंगामा करूं। डीपी साहब बोल के गए कि यदि आपका ईसीजी का ग्राफ स्ट्रेट है तो यू आर गॉन, मतलब यदि आप बोल सकते हैं तो आप जिंदा हैं। ये तो सबूत है, यदि आप बोल रहे हैं मतलब आप जिंदा हैं। तो पीडीपी के प्रचार प्रसार में पिछले साल मैंने एक कविता का यूज किया था कि हंगामा खूब करो, और वो जो मोटी चमड़ी वाले होते हैं ना, वो बहरे होते हैं, कान से जल्दी नहीं सुनते हैं, उनके लिए हंगामा करना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा। और हंगामा जब हमारा सीआईएल का हर दीपक हंगामा करेगा, हर कोल इंडियन हमारा जब हंगामा करेगा, तो देखिएगा दूसरा एक और है कि कहीं पर यदि चहल पहल है ना, हंगामा है, तो लगता है कि हाँ सब कुछ खुशहाल है। कहीं यदि शांति है तो लगता है कि कुछ मुसीबत आई है। एक शोले पिक्चर में था ना डायलॉग, कितना सन्नाटा क्यों है भाई, वो जो गब्बर सिंह मार देता है ना अपने उसके वकीलौता बेटे को, चाचा के, इतना सन्नाटा का मतलब हो गया दुख भरी घड़ी है। दूसरा, हमेशा हमको ये लगता है कि हम क्यों लड़ने जाएं बिना मतलब का, नहीं चुप रहो यार, एसएससी क्यों पचड़े में न पड़े। लेकिन क्या आपका दिल अलाउ करता है कि हम पचड़े में न पड़े? आपके कंपनी को वो आदमी, आपका पड़ोसी गंदगी मचा कर रखा हुआ है, तो आप शांति से रहेंगे तो आपको आपका दिल नहीं मानेगा। आपका लक्ष्य अपना याद रखिए कि हमको परिवर्तन करना है, उस सिस्टम में जाकर हमको वहां पर स्ट्रगल करना है, स्ट्राइक करना है। तो वहां मैं ये बोलूंगा कि जो दिल कहे वो करना। तो इसमें कविता था, धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, धीमे धीमे क्या, इसका बहुत सारे मीनिंग है, आप देखिएगा, सुनिएगा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा। मेरे मैनेजमेंट ट्रेनी और मेरे दीपक, आप ये मान के मत चलिए कि कोल इंडिया में सब ऐसे ही हैं, गूंगा है। कोल इंडिया में बहुत बोलने वाले हैं, बस उनको सहारे की जरूरत है। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, शोर बड़ा अच्छा होता है शोर मचा। जेहन तो बोलेगा, परिस्थितियां ऐसी हैं, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है, पर तू वो कर जो दिल कहता है शोर मचा। लास्ट में है, बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा है, बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा है, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। एक और देखिएगा कि लोगों को गलतफहमी है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इज अगेंस्ट मी, यानी विजिलेंस वाला आया है तो बाल का खाल निकालेगा, 10 तरह की गलती निकालेगा, फॉल्ट निकालेगा, इसका ही काम है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहे पर्सनल डिपार्टमेंट में आप कोई टीए डीए गलत भर के दे दीजिए, वो रिटर्न कर देगा, 10 ऑब्जर्वेशन दे देगा। वैसे ही करप्शन वाली बातें जब आती है तो विजिलेंस वाला आपको ऑब्जर्वेशन देकर बुला लेता है। फाइनेंस या किसी और डिपार्टमेंट से 50 ऑब्जर्वेशन आता है तो आपको खराब भी लगता है, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट एक ऑब्जर्वेशन से एक बार आपको बुला लेता है, बहुत खराब लगता है। तो ये वहम तोड़ दीजिए कि विजिलेंस वाला आपको बुला रहा है परेशान करने के लिए। जैसे वहां से ऑब्जर्वेशन आया, उससे आपको वहां से ऑब्जर्वेशन आ गया। विजिलेंस भी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, एमएम है, वो सब ऐसे ही डिपार्टमेंट है। आपका
सीएमडी और विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले का सीएमडी सेम है, हमारे चेयरमैन और गुंजन जी का चेयरमैन सेम है, हम लोग एक ही बॉस को रिपोर्ट करते हैं। बॉस की ड्यूटी बनती है, मैं आपको बता दूं, हर एक मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ किंग। अब किंग का डिफिनेशन उन्होंने पूछा था, मैं ये मानता हूं कि यहां जितने बैठे हैं सब अपने आप में किंग हैं। कोई छोटा किंग है, कोई बड़ा किंग है। मैडम आईएसीएम की किंग है यहाँ पे, गुंजन जी अपना जीएमएचआर है तो अपना एचआर सेक्शन के किंग है, आप भी अपने आप में किंग है। मेरा जो घर पे जो नौकर है ना, वो भी अपने फैमिली का किंग है। किसी ने हमको 2-4 दिन पहले मैसेज भेजा था कि अपने शब्दों पे, अपने जबान पे लगाम दो। जो आपके घर में नौकर है ना, वो भी अपने घर का किंग है, वो भी अपने घर का सीईओ है, अपने घर का मालिक है वो। इसीलिए शब्द पे कंट्रोल करना, अपना स्टेटमेंट पे कंट्रोल करना। किसी को, कोई छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, उसको कुछ भी बोल देना, ये देखिएगा आपको जिंदगी भर पछतावा होगा कि हमने क्यों बोल दिया। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो भी आदमी एक किंग है। तो मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ किंग। किंग का, राजा का ड्यूटी है कि अपने प्रजा का टाइम टू टाइम चेक करता रहे, टेस्ट करता रहे, एग्जामिनेशन लेता रहे, और जो अच्छा है उसको प्रोत्साहित करे, अवार्ड करे, और जो बुरा है, कमजोर है, उदासीन है, या काम नहीं कर पा रहा है, या करप्ट है, उसको उचित दंड दें, या कंट्रोल करें, या सहायता करें, या ट्रेनिंग दें। राजा की ये ड्यूटी है, इसको टाइम टू टाइम करते रहना है। हमारे चेयरमैन साहब की ड्यूटी है कि वो चेक करते रहे कि कौन आदमी काम का है और कौन आदमी काम का नहीं है। जो काम का है उसको और प्रोत्साहित करें, अवार्ड मिले उसका, और जो काम का नहीं है उसमें देखें कि कहाँ कमी है, ट्रेनिंग की जरूरत है कि क्या है, किस तरह का है। और यदि उसमें विजिलेंस वाली बात आ रही है, करप्शन वाली इशू आ रहा है, तो उसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं। तो राजा को विजिलेंस डिपार्टमेंट हेल्प करता है। आप भी अपने आप में एक राजा हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में, छोटा मंत्रालय है, टेंडर सेक्शन आप देख रहे हैं, तो आप टेंडर सेक्शन का पूरा आदमी को चेक करते रहिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। जो बुरा है उसको कंट्रोल कीजिए, यदि करप्ट है तो उसको गाइड कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि पहले दिन हम विजिलेंस को कंप्लेन करते हैं। आपका आदमी है, उसको गाइड कीजिए, उसको आप विजिलेंस ऑफिसर खुद बनिए, उसको सतर्क रखिए। तब भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको फिर पनिशमेंट कीजिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए किसी और पोस्ट पे। तब भी नहीं सुधरता है, तब पीडपी वाला इंजेक्शन दीजिए, या विजिलेंस को सीधे रिपोर्ट कीजिए। तो ये राजा की ड्यूटी है, टाइम टू टाइम ये करते रहने का काम कि हमारा। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट उस राजा को हेल्प करता है, वो कहीं से कोई गुनाह नहीं करता है। जब मैं कोल इंडिया ज्वाइन किया तो मैंने एक आपके लिए कोड बनाया, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए कि विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आप डिसीजन लीजिए, आप काम कीजिए, डरिए मत। लोगों ने बताया कि, मैडम भी बताई यहाँ पर कि हमको विकसित भारत 2047 में विकसित भारत का, विश्व गुरु भारत का हम जो सपना देख रहे हैं, तो बिना कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन का नहीं होने वाला है। दूसरा है, कोल इंडिया में जो चैलेंजेज है वो भी देखिएगा कि जो कोयला के एज इट इज फॉर्म में आज से 20 साल 25 साल बाद कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा, हमको इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी और फील्ड में जाना पड़ेगा। यानी न्यू इनोवेशन और न्यू डिसीजन में जब जाएंगे तो मतलब हो गया कि आपको उसके अनुसार नए सिरे से डिसीजन लेना पड़ेगा, नए सिरे से आपको फिर नॉलेज गेन करना होगा। कोई भी डिसीजन के लिए मैंने बताया आपको, नॉलेज, किसी भी डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए। मैं नॉलेज जब बात आती है तो मेरे को अभिमन्यु की याद आती है, महाभारत का अभिमन्यु। उस लड़के को जब मां के गर्भ में था तो उसको चक्रव्यूह भेदना आता था, लेकिन जो कहानियां पढ़ेंगे आप तो उसमें जब 7वां दरवाजा
तोड़ने की बात, फिर रिटर्न होने की बात जब आई, उसके तब उसकी मां सो गई, तो नहीं समझ पाया कि तो वापस कैसे आते हैं या सातवां दरवाजा कैसे तोड़कर निकलते हैं। जब जन्म हुआ उनका, लगभग 16-17 साल तक उनके गुरु जी थे भगवान श्री कृष्ण और उनके पिताजी थे अर्जुन। ये दोनों को आता था कि चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं, और साथ में एक भीष्म को आता था, एक द्रोणाचार्य को आता था। 4 ही आदमी को आता था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। ये 4 में 2 उनके ही साथ थे, एक गुरु जी थे, एक पिताजी थे, जो 24 घंटों में रहते हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसे आदमी को जिसका पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, वही गुरु जी बैठे हैं, वही किताब है, वही मैनुअल है, सब कुछ है, और उसने सीखने की कोशिश ही नहीं की, और अपने आप को महान योद्धा शामिल करके सीरीज में उनको गिनना लोग शुरू कर दिया था। महान योद्धा है, महान योद्धा है, तो वो कमी रह गई। मतलब जो आदमी, मान लीजिए कि हमने अंदर गर्भ के समय नहीं सीख पाए, कम से कम आज तो सीखें। जो हम एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के समय नहीं सीख पाए, आज हमारे पास किताब है, गूगल बाबा में सारा इंफॉर्मेशन आजकल है, यूट्यूब वीडियो में सब कुछ है, आज तो सीखें। तब अपने मिसेज से मैं कभी बात कर रहा था, तो मैडम को बोला कि जो आदमी अधूरा ज्ञान में रहता है ना, तो मैडम बोली कि उसको हारना आता है। तो नहीं, इसको और स्टेज में जाइए। जो अधूरा ज्ञान में रहता है उसको हारना, खाली हारता नहीं है, वो मारा भी जाता है। और मन्नू का हालत देखिए क्या हुआ था, वो अपने आप को नहीं बचा पाए महोदय। इतना बड़ा योद्धा थे, अर्जुन के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे, क्या क्या नहीं था, लेकिन अधूरा ज्ञान। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आप अपना ड्यूटी करने जाइए तो नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, इनपुट क्या करते हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसका क्या डाटा चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कितना सामान चाहिए, क्या चाहिए। इनपुट भी कंप्लीट होना चाहिए। फिर अब आएंगे, फिर महाभारत में जाइए, द्रोणाचार्य वो इनपुट लिए। द्रोणाचार्य के साथ आशीर्वाद क्या था कि यदि उस आदमी के हाथ में यदि अस्त्र शस्त्र है तो उसको कोई नहीं मार सकता है। दूसरा एक और आशीर्वाद था कि यदि उसकी इच्छा नहीं हो कि मर जाए तो तक नहीं मरेगा। अब इसका वेद जानते ही भगवान श्री कृष्ण का अपना, मतलब पढ़िएगा महाभारत में। इस महाभारत पढ़ना अपने आप में बहुत महान है, अपने बच्चों को पढ़ाइए आप लोग। महाभारत में देखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे छल कपट और सारा बुद्धि लगाया। मैं तो अपने माइनिंग इंजीनियर्स को बोलता हूं कि श्री कृष्ण बनो, राम बनने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका नेचर ऑफ वर्क इस तरह से है कि श्री कृष्ण बनना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण को पता था, तब वो अपना पुत्र मोह वाली अश्वत्थामा का वो बोला गया कि प्रचार कर दिया, झूठा अफवाह फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य को केवल युधिष्ठिर पर भरोसा था कि वो बोल देगा कि हम मर गया तो मैं मान लूंगा, क्योंकि आदमी झूठ नहीं बोलता है। अब द्रोणाचार्य के पास जब आया, युधिष्ठिर के पास जब आया द्रोणाचार्य, तो कृष्ण को पता था कि तो झूठ बोलेगा नहीं, तो बोले यार बोल दीजिएगा कि मर गया। बोले नहीं, मैं क्यों बोलूंगा। तो ये बुलवाने के लिए एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसको मारा गया। देखिए कैसा षड्यंत्र करना पड़ता है। यानी द्रोणाचार्य इतना महान थे कि उसको आप आसानी से नहीं मार सकते, तो उसके लिए षड्यंत्र करना पड़ा, वो भी भगवान श्री कृष्ण को। अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा गया। अब बोला गया आप बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वो भी बोले कि नहीं, हम क्यों बोलेंगे, वो तो हाथी था। तो ठीक है, तो आप भी बोलिएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो आपका बेटा नहीं था, हाथी था, ऐसा बोलना। ये तो बात सही है। तो युधिष्ठिर को बोला गया कि अश्वत्थामा हतो नरो ना कुंजरो, ना आदमी नहीं था, वो हाथी था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें शंख बजा दिए। तो उनके शंख के आवाज में अश्वत्थामा हतो खाली सुनाई पड़ा, बाकी वाला सुनाई नहीं पड़ा। मतलब इनकम्प्लीट इनपुट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यदि सोचिए कि वो यदि सुन लिए होते तो क्या होता। यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इनपुट लीजिए, कंप्लीट लीजिए। ये सब हम लोग गलतियां, ये सब महाभारत से ही सब शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। एक और मैंने कहीं था, यदि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो आपको कुछ अननेसेसरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपका नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग IICM है ही आपके पास,
और मैंने भी पूरा जोर लगाया ट्रेनिंग पे। और आजकल ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, हमारा खुद ही बुद्धि इतना अच्छा है, और आजकल यूट्यूब पे और गूगल में और डॉक्यूमेंट्स सब बहुत सारा मिल जाता है, तो वहां सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। आपका सारा जो भी मैनुअल है सब वेबसाइट पर हमारा अवेलेबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रेनिंग ले लें, प्लस एक्सपीरियंस हो, आपस में डिस्कस करके करें। डिसीजन लेने के सब तरीके हैं, और आप सबसे बड़ा ये है कि आपका करप्शन फ्री माहौल हो, तब देखिएगा आप डिसीजन ले पाएंगे। वो डिसीजन आपका इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, कंपनी के हित में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रूल के हिसाब से जा रहे हैं, पता लग आ नहीं रहा है, फिर भी आप डिसीजन लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, डिले करने से डिसीजन नहीं होता है। कोई हमको फाइल समझ में नहीं आ रहा है, हम 10 दिन से पेंडिंग डाल दिए, तो उससे आपका वो फाइल अपने आप डिसीजन नहीं दे देगा। ये मैं ये बोलूंगा, आप डिसीजन लीजिए। आप बने हुए हैं परिवर्तन करने के लिए, हर डिसीजन परिवर्तन करेगा कोल इंडिया में। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये चीज ध्यान रहे कि वो डिसीजन कंपनी के हित में है, रूल्स रेगुलेशन देख करके है, सोच समझ के है। पहले जब रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं था ना, अभी भी हमारे पास बहुत सारे इश्यूज का एसओपी और मैनुअल नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे लैंड एंड रेवेन्यू का, इसका था। तो जिसका रूल नहीं है उसका आपका आत्मा गवाह जो करता है ना, वो काम करिए, लेकिन वो कंपनी के हित में होना चाहिए। यदि आप सोच समझ करके डिसीजन ले रहे हैं, रूल देख करके समझ रहे हैं, आपस में डिस्कस करके ले रहे हैं, कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं, जो दिल कहता है वो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन यदि 10 दिन के बाद, 2 महीना बाद, 2 साल के बाद गलत भी हो जाता है, तब भी मेरे कोल इंडियन ये बात मेरी याद रखना कि आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। यदि बिजनेस वाला पकड़ लेगा तभी आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि आपने सोच समझ के कंपनी के हित में उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी डिसीजन मांगता था, ऐसा आपने डिसीजन लिया है। आत्मग्लानि आपको नहीं होगी, भले आपको चार्जशीट हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और विजिलेंस वाले भी इसीलिए ज्यादा रिसर्च करते हैं कि वेदर इट इज मैलिफाइड और नॉट। लेकिन यदि वो डिसीजन, माय डियर फ्रेंड, आप अपने हित में लिए हैं, आपको कलकत्ता में चाहे रांची में पोस्टिंग बनी रहे, इसके लिए लिए है, चाहे 10 रुपया हमारा कुछ मिल जाए पॉकेट में, उसके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी को आप चुना लगा रहे हैं, तो डिसीजन गलत होना ही है। ऐसा डिसीजन यदि गलत होगा ही होगा, वो तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, आप रात में सो भी नहीं पाएंगे। तो उसमें कहीं मैं कविता पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। मैंने डिसीजन लिया, गलत हो गया डिसीजन, उसको खुदा भी माफ कर देता है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। मतलब यदि आपका नीयत खराब है, आप कंपनी को चुना लगा रहे हैं, अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बख्श सकता है। और यदि आपका नीयत ठीक है, कंपनी के हित में आप काम किए, गलत हुआ तो भगवान जब माफ कर देता तो आदमी की क्या बात है, विजिलेंस की क्या बात है। ये एक और देखिएगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना 99% मेहनत करता है सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए। सिस्टम इंप्रूवमेंट मतलब कोई सिस्टम में हमारा कमी है, उस लूप होल को बंद करने के लिए। और मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि सिस्टम इंप्रूवमेंट इशू करना, मतलब प्रिवेंट करना, पनिशमेंट से बहुत ही ज्यादा 1000 गुना ताकतवर होता है। मैं परसों डीपी साहब को बोला कि देख लीजिए कि सारे लोग आ जाएं ट्रेनिंग हमारे, तो नहीं आएंगे, हमने एक बार बोल दीजिए। तो हमारे साथ गुंजन साहब बैठे हुए थे, सबको खबर किया गया कि हमारे सारे ट्रेनिंग ऑफिसर आए, क्योंकि बाद में मान लीजिए नहीं आता है तो उसको आप 100 कॉल नोटिस कीजिए, पता नहीं क्या क्या कीजिएगा, तो फिर आपका पर्पसन नहीं होगा। इसलिए कुछ फेल होने के पहले इनको टोक दिया जाए, बोल दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंप्रूवमेंट। मैं हमेशा समझाता हूं किस तरह से कि गेहूं का बड़ा सा बोरा है, और पुराने जमाने में बोरे में हम लोग गेहूं रखते थे, वहां कोई वीक पॉइंट था, कोई लूप होल था, मैनुअल में चाहे एसओपी में चाहे रूल्स रेगुलेशन में। वो गेहूं के बोरा में कोई चूहा जहां कमजोर पॉइंट था, वीक पॉइंट था, वहां होल कर दिया। जब गेहूं होल किया जब रैट ने, चूहा ने, तो वहां से गेहूं गिरना शुरू हो जाएगा।
उसमें से 2, 4, 10, 20, 50 जितना दाना ले जा सकता है ले जाएगा, आप मान लीजिए, फिर बाकी गिर रहा है। विजिलेंस वाले आएंगे, देखेंगे कि चूहा काटा है, चूहा खोज रहे हैं, चूहा खोज रहे हैं। मैं रेलवे में विजिलेंस में था, तो मैं देखा इसमें मेरा भी सारे आदमी रिसर्च कर रहे हैं, सर इसको तो चार्जशीट होगा, तो इसमें ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो मैं बात हुआ क्या, तो सर ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया। रूल तो अभी भी है, मतलब गेहूं का तो होल है, गेहूं तो वहां वेस्टेज हो रहा है। बोला सर वो चूहा खोज रहे हैं, चूहा मिल नहीं रहा है सर, चूहा का अभी पकड़ा गया है एक, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उसको चार्जशीट होगा, फिर इंक्वायरी होगा, फिर जो भी होगा होगा। इसमें लग जाएंगे कई साल, कई बरस। तो बोले ऐसा करो कि हमको समझे अच्छा से। मैंने सबसे पहला काम किया 2 लाइन का लेटर लिखा, 2 बज रहा था, 2 बज के 20 मिनट मैंने लेटर इशू कर दिया कि ये गेहूं के बोरे में यहाँ होल है, इसको तुरंत बंद किया जाए, और ऐसा पूरा होल को एग्जामिन किया जाए बोरे को कि ऐसा कहीं और वीक पॉइंट तो नहीं है, और सब कुछ ठीक किया जाए। और 2 बज के 20 मिनट में खाना खाने चला गया। वो लेटर को मैं भेज दिया, और मेरी थोड़ी आदत थी क्या कि मैं जब सिस्टम को इशू करता था तो एक पूरा डिपार्टमेंट का, जैसे चोरी ग्रुप है आपका, उस ग्रुप पर भी मैं लेटर को डाल दिया। और जब तक मैं खाना खा के आया तब तक बॉस के पास लेटर पहुंच चुका था, और बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि अरे ये तो बोल रहा है कि रूल चेंज करो, विजिलेंस वाला बोल रहा है, नया नया लड़का आया है। अब मेरे पास बॉसेस का फोन आना शुरू हो गया कि त्रिपाठी को, चूहा को तुम पकड़ो ना, तुम क्यों बोल रहा मैनुअल चेंज करने के लिए। तुम कहेगी तो मैं, इनको क्या कष्ट हो गया। ना आपका आश्चर्य लगेगा कि वो फाइनेंस वाले से लेकर के टॉप बॉसेस से लेकर के और नीचे तक सबके सब एकदम परेशान थे कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ है। अब मेरे को तब सा संदेह हुआ ऐसा क्या है। तो अब मैं जब अंदर देखा, पता चला कि वो जो गेहूं से बोरे से जो गेहूं निकल रहा था, उसमें पता नहीं कितने लोग अपना हाथ धो रहे थे। वो तो चूहा नेसेसरी बदनाम था खाली। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सत्य यही है कि कोई लूप होल यदि है किसी सिस्टम में, हमारे कोई आदमी उसको मिसयूज कर रहा है, तो उसका ब्रेन पॉइंट है। हर्षद मेहता का केस देखिएगा, उसने रूल का होल बनाया, भाई रूल को चेंज करो ना पहले, फिर हर्षद मेहता के पीछे तुम क्यों पड़े हो। यानी दैट इज कॉल्ड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। जब मैंने उसके पीछे पड़ा, रिमाइंडर दिया, कोई भी मैनुअल को चेंज करने के लिए बोरे का होल बंद करने को तैयार नहीं था, न बाकी एग्जामिन करने के तैयार था, क्योंकि वो हजारों बोरे में छेद था और लाखों लोग उसमें से पता नहीं क्या कर रहे थे। तो रिमाइंडर देने के बाद भी मोटी चमड़ी वाले सब जगह होते हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही एक गैदरिंग था, उसमें मैं, जैसे आज मैं बोला ना गुंजन साहब, 2 ही कमजोरी है पर्सनल डिपार्टमेंट की, कंप्लेंट जो मेरे पास आते हैं, एक फेवरिज्म का और एक डिले का। वैसे में बोला कि इस मैनुअल में ये कमी है, उसको बंद क्यों नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद अब ये से कहा, एक और बात मान के चलिए, जब कोई काम बॉस से नहीं होता है ना, तो उसके बॉस के पास चलिए, गो 1 स्टेज हायर, देखिएगा सब सीधा हो जाएगा। मैं यदि कोई बात कंसर्न डायरेक्टर को बोला नहीं हुआ तो मैं चेयरमैन के पास जाता हूँ, चेयरमैन से भी नहीं होता है फिर मैं एमओसी में जाता हूँ, फिर वहां सेक्रेटरी के पास जाता हूँ, तब भी नहीं होता फिर सीबीसी के पास जाता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं है जहां पर लोगों को शर्म आएगी ना, अदरवाइज आपका काम नहीं होने वाला है। अच्छा, आपको लोग लाइटली ले लेगा। तब मैंने हाईलाइट किया, वहां पर हमारे जो जनरल मैनेजर सो कॉल्ड रेलवे के जो हेड होते हैं वो भी बैठे हुए थे। फिर बोला कि हमको बताना अलग से क्या है। हमने बताया इसको कुछ नहीं, बंद कर दी। वो जो लूप होल बंद हुआ, वो अलग बात है कि 2 दिन बाद मेरा ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन मैंने लाइफ का सबसे बड़ा काम वही किया था, और कई हजार करोड़ का मैंने सेविंग कराया रेलवेज का। और आज के बाद, उसके बाद मैंने तब ये, दैट इज पावर ऑफ सिस्टम इंप्रूवमेंट। और आज भी हमारा ख्याल से, हाँ, बाद में वो चूहा को क्या हुआ, हमने कुछ दिन पहले खबर लिया था, बोला कि नहीं वो तो चूहा को माफ कर दिया लोगों ने। ये भी अजीब विडंबना है। हमारा सब जगह सिचुएशन है कि एक बार हम चार्जशीट बड़ा मुश्किल से देखते हैं कि मालाफाइड एंगल है, उतना रिसर्च करते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि उसको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने के बाद यहाँ सीनियर्स भी हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे आदमी को सपोर्ट मत कीजिए। जो करप्ट है, जो गलत लोग हैं, उसको गलत का उसको महसूस होना चाहिए। ऑनरेबल पीएम का 15 अगस्त का स्पीच देखिएगा इस साल का, उन्होंने बोला था कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। यानी जो करप्ट है उसका गुणगान तो नहीं करें,
हम ऐसे सोसाइटी में हैं कि जिसने करप्ट मीन से अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी बना लिया, घोड़ा बना लिया, उसका हम लोग गुणगान करते हैं, करे बहुत पैसा कमाया जी, वाह 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 वाह। कोई पूछे तो कि पैसा कहां से लाए हो? आप मामूली से बाबू हैं और घर बना लिए करोड़ का, कहां से आया पैसा? मैं आपको ये रिक्वेस्ट करने आया हूं माय डियर फ्रेंड, मेरा एक काम कर दीजिए, जो करप्ट है, जो भ्रष्ट है, उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। रेस्पेक्ट तो कतई नहीं करें। मेरा एक बॉस इस तरह से है, मैं बोला कि ठीक है, मैं आपका सम्मान करूंगा। कब? जब आपके ये सवाल से आदतें हैं। मैं आपको मानता हूं, मेरा बॉस है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इज्जत नहीं करता। वो आपको कमाना पड़ता है, इज्जत लोगों को कमाना पड़ता है। आपका कर्म, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो लक्षण हैं, उससे आपको इज्जत मिलती है। पैसा कमा लेना या पोस्ट पर चले जाने से नहीं होता है। हम कुर्सी का, अब या मैं सीबीओ हूं तो हो सकता है हजारों लोग मुझको प्रणाम करेंगे, लेकिन कल मैं सीबीओ पोस्ट से हटूं तब भी मेरा कोई प्रणाम करता रहा, तब मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने इज्जत कमाई है। ये आपका आइडेंटिटी होती है। ये आपका, दैट इज कॉल्ड मोरल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अपने कर्म के प्रति जो काम आपको पकड़ाया गया है। कल मैं फ्लाइट में पढ़ रहा था, तो हमारे साथ नीतीश आ रहे थे, तो बोल रहे क्या कि सर हमने नहीं, हमको पढ़ना है रास्ते में, क्योंकि पढ़ना था आपको कुछ बताने के लिए। इस बीच में टेबल टेनिस में टाइम नहीं मिल पाया, मैं देख नहीं पाया क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, तो मैं देखने लगा। फिर आज रूम में गया, देखा कि पढ़ रहे हैं। बोला सर इतना मेहनत आप करते हैं? क्योंकि अभी जो काम करना है मेहनत से करो, नहीं काम करो, जो काम करो मन से करो। इवन टीटी टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी मैं 5 दिन खूब प्रैक्टिस किया, तब टीटी खेला। जो काम आपको पकड़ाया गया, डीपी साहब बोल रहे थे, माइनिंग इंजीनियर्स, यदि कोल इंडिया में कोई राजा है तो माइनिंग इंजीनियर ही है। रेलवे में आज की डेट में जो राजा है, हम लोग रेलवे में दामाद बोलते हैं, रेलवे का कोई दामाद है तो ट्रैफिक ऑफिसर है। आज से 50 साल पहले सिविल इंजीनियर, हम जो जिस पोस्ट पे हैं, हम लोग दामाद हुआ करते थे। मैंने ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ करता था, सिविल इंजीनियर टॉप पोस्ट पर जाते थे, बाकी लोग असिस्ट करते थे। अब कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रैफिक वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल है। तो हमारा माइनिंग इंजीनियर कोल इंडिया का ऑल इन ऑल है। बाकी आपको सहायता के लिए बैठे हुए हैं। कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, कैसे हमारा सेफली काम हो, इसके लिए आपको माथा खपाना है। कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे आज के डेट में, गुंजन साहब भी थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिएगा। आपको मैं 2 रिक्वेस्ट करूंगा प्रचार प्रसार करने के लिए। एक तो ये प्रचार प्रसार किया जाए कि कोल इंडिया में हम 100% मैकेनाइज हो चुके हैं। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल इज हैंडल्ड बाई मैनुअल मोड। मतलब हम खोदते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज से 1 साल पहले मेरा रिलेटिव फोन किए कि अरे तुम्हारे यहाँ कितना टोकरी और कितना वो का फावड़ा बिकता है। तो बोला क्यों? अच्छा नहीं वैसे ही पूछ रहा था, कितना 2 लाख 4 लाख 50 लाख 1 करोड़। बोला नहीं कुछ हमारे फावड़ा और टोकरी नहीं खरीदता कोल इंडिया। फिर 10-15 दिन में मुझको ध्यान आया कि इस आदमी को कोल इंडिया से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों फोन किया। फिर आपका गुंजन साहब शिकायत कर रहा हूं मैं, तो उनको मैं फोन किया, तो बोले नहीं वो टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था ना आर्टिकल, यार कोल इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, यू आर ग्रोइंग लाइक दिस, यू आर नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एंड सो एंड सो एंड सो, पता नहीं क्या बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो बोला भेजना मेरे पास, तो आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा। लेकिन उसमें जो फोटो लगाए थे ना, वो 3 लेडीज टोकरी लेकर के और 1 आदमी फावड़ा लेकर के। तो हम जो परोसेंगे दुनिया को ही नहीं समझेगा। तो ये प्रचार प्रसार किया जाए कि हम आज ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं, कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है, विच इज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क, विच इज नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। आईटी का और सैप का जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, वैसा टेक्नोलॉजी बहुत कम माइनिंग सेक्टर वाले यूज करते हैं। माइनिंग सेक्टर के लिए हम लोग आईटी इनिशिएटिव जो हमारे लिए सूट करता है, उसके लिए स्पेशली डिजाइन करते हैं। हमारा प्रॉफिट से लेकर के हमारा शेयर मार्केट, हमारा विश्वास लोगों में बहुत बढ़ा हुआ है। हमारा एक और काम कर दीजिए, ये बताइए कि कोल इंडिया में आज वही आता है जो जेम है, जो टैलेंटेड है, जो जीनियस है, जो संघर्ष वाला है, टॉप जेम हमारे आते हैं, हमारे लोग, हमारा पावर है। और आखिर ये भी बताइए कि कोल इंडिया, मैं हमसे बताता हूँ कि कोल इंडिया जीरो टॉलरेंस
टू करप्शन पे काम कर रहा है। ये दुनिया वालों को बताना जरूरी है कि अब कोई सपना दिमाग में लेके आ रहा है कोल इंडिया में चलो करप्शन भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो यहाँ पर उनका सपना नहीं फलने वाला है, उनका दिवा सपना होने वाला है। मतलब हो गया कि हम आज के डेट में करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। यदि कोई अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियस है कि हो सकता है कि 50 कमियां हो, लेकिन जरूर कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं जो उसको अच्छा करा रहा है। यानी ये ग्रेट प्लेस टू वर्क का जो 1 साल का हमको सर्टिफिकेट मिला है वो ऐसे मजाक में नहीं मिला है। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, हमने डीपी साहब को बताया था कि हम लोग अपना कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं, हमको भी नहीं बताया था, पता है। और 1 नवंबर को जब उन्होंने सर्टिफिकेट का अनाउंसमेंट किया था, आप ही ने शायद अनाउंसमेंट किया था ना, क्या नाम का, हाँ, तो उसमें जब अनाउंसमेंट किया उन्होंने स्टेज से ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो उन्हें रियली माइनिंग सेक्टर में जहां पर 2.5 लाख एम्प्लॉई है, ऑफिसर्स हैं, उस ऐसे सेक्टर में ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिलना ये वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कहां से आया? आपके चलते ही आया, आपके कर्मों से आया, आपके बिहेवियर से आया, आपके ट्रांसपेरेंसी के चलते आया। तो आप आए, कोल इंडिया को स्वच्छ करना है, कोल इंडिया को करप्शन फ्री करना है, कोल इंडिया से मोटा भाई को बाहर करना है। मतलब आप हमारा हेल्प कीजिए, करप्ट लोगों को बायकॉट कीजिए, करप्ट लोगों का डिसरेस्पेक्ट कीजिए। मैं हमेशा रामायण का एक अध्याय से जोड़ता हूं। मैं पहले महाभारत बता रहा था। बचपन से जो लोग सीखते आए हैं, भगवान श्री राम के 2 भक्त थे, एक हनुमान जी थे, एक विभीषण थे। एक हनुमान जी और एक विभीषण, दोनों भक्तों का लंका विजय में भगवान श्री राम का जो कंट्रीब्यूशन था वो अपने आप में यूनिक था। तो उन्होंने, दोनों भक्त थे, लेकिन आप देखिएगा कि हनुमान जी को हर गली चौराहा, हर गांव में, हर जगह पे पूजा की जाती है, लेकिन विभीषण का कोई पूजा नहीं करता है, न अपना घर परिवार का, अपने घर पे बच्चों का नाम भी नहीं रखता है। उल्टा हमारे सोसाइटी में जैसे करप्ट का आदर करता है ना, प्रचार गुणगान करता है, वैसे ही अच्छा चीज करता है क्या, लेकिन विभीषण को खराब सेंस में बोलता है कि तुम तो विभीषण हो। माय डियर फ्रेंड, आप माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, देश के कोने कोने में जगह जगह जाके काम करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा कंपनी की बातें, हमारा अंदर का जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो बाहर का कोई यूनियन को, चाहे नेता को, चाहे किसी को ऐसा खबर ना करे ताकि हमको कोई विभीषण करके पुकारे। ऐसा मैंने बहुत सारा मैंने सुना है, हालांकि विजिलेंस इशू नहीं है, लेकिन हम ऐसा कंपनी में काम करते हैं, यदि कुछ कमी है तो हम अपने लोगों को सिखाएंगे, अपने बॉस को बताएंगे, खुद ठीक करेंगे, हम बाकी लोगों को बताने की क्या जरूरत है। अभी सीएमडी साहब आ गए हैं और वो फोन कर देगा नेताजी को, आ जाके मिल लो। मतलब विभीषण का नौकरी, विभीषण का उपमा मिलना बहुत ही बड़ा खराब माना जाता है। तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि आपको कोई विभीषण कहे। तो देखिएगा, भगवान श्री राम के 2 भक्तों में एक हनुमान जी का जगह जगह पूजा होता है और विभीषण का कहीं पूजा नहीं होता है। जानते हैं क्यों? वही करप्ट वाली बात हम देखें यहाँ पर यदि, तो मैं कहीं पढ़ा था कि विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब है। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही है उसे पूजा नहीं जाता। भ्रष्टों को बायकॉट करें, भ्रष्टों को आइसोलेट करें, लेट हिम फील। जो आदमी एग्रीड लिस्ट में है, आप लोग पर्सनल डिपार्टमेंट के यहाँ पर मेजोरिटी में है, एग्रीड लिस्ट वाला है, ओडीआई लिस्ट में, वो डिक्लेयर्ड है कि ही करप्ट, उसको तो सेंसिटिव पोस्ट पर नहीं रखे। वो आदमी डिक्लेयर्ड है, करप्ट है, खूनी है, जो उसके साथ टेंडर पेपर साइन करेगा उसको भी लेके जाएगा। तो पर्सनल डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को ट्रांसफर करें, भले वो एग्जीक्यूटिव चाहे रोकता रहे, आप ट्रांसफर कर दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए। मतलब आपकी शिकायत होती है और वो अपना आपके ऊपर बंदूक लगा के करता है। एग्रीड लिस्ट पे, एग्रीड लिस्ट वाला और डीआई लिस्ट को कभी भी सेंसिटिव पोस्ट पर नहीं पोस्टिंग होना चाहिए। ये आप कसम खा लीजिए। मैं पिछले 2 महीना में जो भी था, इक्का दुक्का जो भी बचा हुआ था, उसको भी हम लोग उखाड़ के फेंके। एक साथ में कितना 186 लोगों का ट्रांसफर हुआ, हम लोग उसको हटाए पूरा। कोल इंडिया में आज के डेट में कोई भी आदमी जो डीआई लिस्ट में है, सेंसिटिव पोस्ट पर नहीं है, उसको फील होना चाहिए कि हमने गलत किया था।
तो इस तरह से हम लोग ये माहौल बनाए अपने कंपनी में, अपने गांव में, अपने सोसाइटी में, इवन अपने घर में, कि जो गलत है उसको विरोध करें, उसको ऑब्जेक्ट करें, उसको आइसोलेट करें। एक और हिम्मत रखना है, मैं बोला आपको निडर, जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखो। मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रूल के हिसाब से काम करना है। हमको ही कोई सजेशन दे दे कि नहीं इसको जाने दीजिए, तो मैं तो नहीं मानूंगा। मेरे पास आएगा तो मैं लिख दूंगा। कम से कम ये नहीं लिखूंगा कहा काम नहीं होना चाहिए, मैं ये लिखूंगा कि फैक्ट इज दिस। तो इसके लिए मैं कभी एक कविता बनाया था कि वक्त के इस दौर में, वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम, वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम। गलत को गलत ना सही, गलत को गलत ना सही, पर सही भी क्यों कहें हम। मतलब गलत को हम नहीं गलत कह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एबीसीडी रीजन, हम सही भी नहीं कहेंगे, ऐसा हम करके चले। माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया, माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया, उन्हीं मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं हम। ईमानदारी और मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम। मैं आपको बताया, आपके माता पिता, आपके गुरुजी और आपका जो संस्कार मिला है उसको नहीं भूलना है, और ना बोलना शुरू कर दीजिए, जो गलत है उसका विरोध करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा हम करप्शन फ्री, तभी कोल इंडिया का सपना पूरा कर पाएंगे। एक और हमने किसी सब्सिडी में रिसर्च किया था, ये बड़ा ही विडंबना है कि हमारे कोल इंडियन इतने अच्छे हैं, हमने इतना तारीफ किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो कोल इंडिया के क्वार्टर में रहते हैं और एचआरए भी ले रहे हैं, कंपनी क्वार्टर में है और एचआरए भी लेते हैं। भाई कैसा उनका अपना जमीन अलाउ कैसे करता है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना हूं, जैसे पता चले इसको हंगामा करना जरूरी है, और ऐसे लोगों को कटघरे में खाली सामने रखना जरूरी है। एक और हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि क्वार्टर उसको अलॉट कर दिए, लेकिन उसका अलॉटमेंट कागज की जो एचआरए बंद होना चाहिए, आपकी फिर मैं शिकायत करूंगा, वो अकाउंट तक पहुंचा नहीं। एक और मेरा काम कर दीजिए गुंजन साहब, ये प्रचार प्रसार कराइए कि आपका क्या राइट है। हर बैंक, हर हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, ऑफिसरों सबको पता चले, उसको एक हम लोग अपना वेबसाइट में सब अपडेट करें कि हमारा क्या क्या राइट है, वो बताएं सबको। सारा कंपेंडियम बना के एक जगह रखें। नॉन एग्जीक्यूटिव वालों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारा कहाँ कहाँ डिले हो रहा है, कंपनसेशन वाले जो अपॉइंटमेंट वाले केसेज हैं उसका क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, क्या केवाईसी जैसे है उस तरह से अगर नो योर एम्प्लॉय केवाई बनाएं। आप नए नए यंग आ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, उसमें कुछ ऐसा बनाइए कि हमारा डिले अवॉइड हो जाए। कोई भी बिल का ट्रांसपेरेंसी का उसमें जाए। रोटेशनल ट्रांसफर, जब ये आदमी, अभी हम लोग बीसीसीएल और डब्ल्यूसीएल में शुरू कर दिए सैप का यूज कर रहे रोटेशनल ट्रांसफर के लिए, तो हम लोग उस तरह वहां का यूज करें। तो इसको प्रचार प्रसार करना जरूरी है हमारे लोगों को कि क्या रूल है, क्या राइट है, आपको वो जानेगा तभी तो। यानी वो 700 लोगों ने को एचआरए बंद किया गया, उसमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे को, लेकिन वो ये तो झूठ बोलना, तो बात हो गई कि बात का बतंगड़ बात बना रहा है अपना। आपको एचआरए मिला, आप सर्टिफिकेट में देख रहे हैं कि हमको एचआरए मिल रहा है, तो आप कैसे बोल सकते थे हमको वो नहीं पता था। तो क्योंकि इतना बल्क में था कि कोई एक्शन वो नहीं लिए, लेकिन ये चीज प्रचार प्रसार में खुलेआम सब जगह बोलता हूं कि हमारे कोल इंडियन इतने अच्छे हैं कि कम से कम एक हीनियस वर्क तो नहीं करेंगे, कि कंपनी क्वार्टर में रहेंगे भी और एचआरए भी लेंगे। तो इसमें आपको भी प्रचार प्रसार करना है इसको कि मतलब जो गलत है वो गलत है। एक और मैं देखा हूं कि काम ना करना हो ना तो रूल दिखा दीजिए। हर कंपनी में आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रूल दिखा के काम नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। आपका जो नियम बनाया गया है काम करने के लिए बनाया गया है, काम रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। आप अपना
सेल्फ कॉन्शियस और अपने माइंड का यूज कीजिए कि रूल ये बोलता है तो हमको काम करना है, सोचना है कि हमारा काम कैसे हो। उसके लिए जरूरत पड़ेगा तो बॉस से अप्रूवल कराइए, जरूरत पड़ेगा तो और बॉस सुपर बॉस से अप्रूवल कराइए, लेकिन काम कैसे हो इस डायरेक्शन में हमको सोचना है। एक और हमने देखा है हर कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं करते हैं, आएंगे अपना 9 से 5 ड्यूटी करके, ड्यूटी भी नहीं करेंगे, आके चुपचाप बैठ करके चले जाएंगे, 4 अखबार पढ़ के चले जाएंगे, यानी कुछ नहीं करते हैं, सैलरी पूरा लेते हैं। मैंने एक कोट बनाया था, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। मैं चोरी शब्द का जनरली प्रयोग नहीं करता, लेकिन सॉरी, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। ये और ही खतरनाक है, वो करप्ट लोग हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक है कि कुछ नहीं कर रहा है आदमी और हमारा वर्किंग कल्चर को खराब कर रहा है। ऐसे लोगों को मैं बताया किंग की ड्यूटी होती है, ऐसे लोगों को अपना गाइड करें, टाइट करें। एक और 2023 में लास्ट ईयर एक सर्वे हुआ था, दैट इज कॉल्ड गोलेब सर्वे, पूरा इंटरनेशनल लेवल में हुआ। उसका डाटा जो आया कि ऑलमोस्ट पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 63% लोग ऐसे होते हैं जो अपना 9 से 5 ड्यूटी करके चलते बनते हैं, यानी पहले उनको कोई मतलब नहीं है, बाद में कोई मतलब नहीं है। 9 से 5 अपना ड्यूटी किए, जो काम आप पकड़ाइए वो करेंगे, अपना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे, 9 से 5 करके चले गए, दैट इज कॉल्ड 63% है वो लोग। 24% लोग ऐसे हैं जो न काम करेंगे और न करने देंगे, 24%, ये इंटरनेशनल डाटा है। उसी में आपको वो जो बैठ करके टाइम पास करता है वही, और ऐसे ही लोग बाल का खाल निकालते हैं। जो काम करेगा उसका कंप्लेन भी यही लोग करते हैं बैठ के, हमको लिखते हैं क्या कि सच्चा देशभक्त। मेरे पास कंप्लेन आता है मालूम है, नीचे लिखता है सच्चा देशभक्त। वो आदमी कुछ एक ढला काम नहीं करेगा और खाली कंप्लेन करता रहेगा। करप्ट लोग भी उसी में आते हैं 24% में, मैंने कंपनी को चूना लगाएगा वो भी 24% में ही आते हैं। तो जो काम ना करेंगे दैट इज कॉल्ड बैडली डिसएंगेज्ड। और 13% माय डियर फ्रेंड, 13% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपनी दिन रात, कंपनी के लिए जिएंगे, मरेंगे, सोएंगे, उठेंगे, कंपनी के लिए ही लगे रहेंगे, काम करते हैं। 13% ऐसे होते हैं। ये इंटरनेशनल डाटा ये है। कोल इंडिया में भी देखिएगा मोटा मोटी यही डाटा आएगा। एक और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि जो टॉप पोस्ट पर है, डीटी साहब बोल रहे थे ना कि एवरीबॉडी डीटी एंड एवरीबॉडी, डीपी साहब बोल के गए थे कि एवरीबॉडी आई एम लुकिंग डीटी इन एवरी, 13% में बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टॉप पोस्ट पे गया है ना वो 13% वाले में से गया है। कोई काम पकड़ा दो वो करके दिखाएगा। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूं, हनुमान जी, माय डियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड सीनियर ऑफिसर्स, आप एक ऐसा हैबिट बनाइए कि हमको जो काम हमारा बॉस पकड़ाएगा, चाहे कंपनी हमसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं अपने कंपनी के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने सीएमडी के लिए मैं हनुमान रहूंगा। वो जा रहा है तो काम करके आएगा। देखिएगा हनुमान जी का ऐसा इंप्रेशन था कि जब भी राम को मुसीबत आती थी, भगवान थे वो, भगवान श्री राम को मुसीबत पीरियड में, मुसीबत जब आता था तो वो भगवान हनुमान जी को याद करते थे और किसी को नहीं याद करते थे। जब माता सीता का पता करना हो, चाहे भाई को जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगा था तब, चाहे जब भी उनकी मुसीबत आई थी तो उन्होंने बचाया था। और जो काम पकड़ाइए वो बखूबी करते थे, इवन एक्स्ट्रा कर देते थे। आपको पता ही होगा, माता सीता का पता करने गए और उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने, लंका भी जला दिए और जो जो किए होंगे। जब संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां गए तो पता लगा सबका सब प्लांट चमक रहा है, सबका सब लाइट दे रहा था संजीवनी बूटी की तरफ। डॉक्टर वैद्य जी ने ही बताया था। और उनको तो दिमाग में काम आया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। मतलब आप जब जाइएगा सिचुएशन में तो आपका कोई बुद्धि नहीं काम करेगा, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ी उठा लिया। बताइए आपको। तो कहने मतलब कि वो काम करके आना है, आपको हनुमान बनना है। एक और थोड़ा सा मैं रिसर्च किया, जो हनुमान और विभीषण वाली बात थी, वो हनुमान और अर्जुन में कंपेयर किया था कि अर्जुन भी तो ऐसे ही योद्धा थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और बहुत बड़े आदमी थे, वो भी हनुमान की तरह उनका भी नाम लिया जाता है। लेकिन अर्जुन का पूजा क्यों नहीं किया जाता है, न कहीं मंदिर है न कहीं कुछ है। ये भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो हमें जो लगा
कि अर्जुन हर बात में पूछ के काम करता था, मारूं चाचा को मारूं या उनको मारूं या करूं, हर बात में उस भगवान श्री कृष्ण से राय लेते थे, पूछते थे करूं करूं नहीं करूं। और हनुमान जी पूछते नहीं थे, अपना खुद डिसीजन लेते थे। यही कारण है कि उनको हर जगह पूजा जाता है, इनका कहीं मंदिर भी नहीं है। दोनों अच्छे थे। मतलब आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको आपका मैनेजमेंट आप पर विश्वास करे कि आप मेरे हनुमान हैं। इस लड़के को कहीं भी लगा दो, करके आएगा। आप देखिएगा सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे होंगे कि जो अंग्रेज जब आईसीएस का जब स्टार्ट किया था तो उसमें इसका इंटेंशन यही था कि ऐसा आदमी हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, वो हनुमान की तरह रहे। करप्शन कुछ होगा वहां भी, लेकिन उस पर विश्वास करना है। यानी हमारा हर कोल इंडियन ऐसा बने कि आपका मैनेजमेंट आप पर विश्वास करे। और जब काम करता है ना तो गलतियां भी होगी। हमारे घर में हॉल में 2 पंखा है, जहां मैं जनरली बैठता हूं पंखा चलता रहता है। अब वो पंखा चलता है तो गंदा होता है, कभी खराब होता है तो चेचे की आवाज भी आती है। और कभी मेरे यहाँ कोई पहुंचा तो बोला कि त्रिपाठी साहब ये जो पंखा जैसे साफ है ना, ऐसे इसको भी साफ रखिए, देखिए कितना अच्छा से ड्रिल डाल है, टॉप टॉप है, ऐसे ही रखिए। अब उनको मैं क्या बताऊं कि यही है जो पूरा संभाला हुआ है घर को। यानी जो पंखा चल रहा है वही गंदा भी होता है, वही डस्ट भी उसको लगता है, वही आवाज भी करता है और वही वो शिकायत भी कराता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? यानी जब आप काम करेंगे तो गलतियां करेंगे, आप काम करेंगे तो आपका कंप्लेन भी आएगा। आपका पूरे कोल इंडिया में 9 CBOs हैं, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। ये पूरा टीम है, पूरा डिपार्टमेंट है। मैं आपको बताया, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आप डरिए मत, आप काम कीजिए, डिसीजन लीजिए, आग पे चलिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, इनोवेटिव डिसीजन लीजिए। और मैं आपको बोल के जाता हूं कि यदि आप आग पे चल रहे हैं, बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, और यदि आग पे चलने से आपका पैर जलेगा भी ना, तो एक भाई आपका बिजनेस डिपार्टमेंट बैठा है जो आपको मलहम लगाएगा। इस मनसा से हम भी काम करें और इस मनसा से आप भी काम कीजिए। यानी काम हमेशा करते रहना है। वो साफ सुथरा वाला पंखा निकम्मा होकर के करने का काम नहीं है। एक और कभी मैं चाणक्य का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट। मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल देता हूं लोगों को। मैं रेलवेज में CBO में ज्वाइन किया था तो इसको पढ़ा था। तो उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा सा तालाब है, उसमें लाखों मछलियां हैं। उसमें मछलियों को वॉच करना है कि आप कहीं कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट को ड्यूटी दिया गया है कि इतने बड़े तालाब में लाखों मछलियां हैं, उसमें कुछ विजिलेंस लोगों को, ऑफिसर को लगाया गया कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। अब सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट काम है। ये मैं रिसर्च किया, उसमें थोड़ा और देखा कि बड़ा मुश्किल है जी। तो ऐसा काम बिजनेस वाले का, हमारा काम इस तरह का आ रहा है। तब मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि खुद मछली बन जाते हैं और तालाब में जाते हैं, और तालाब का हमको पूरा काम भी करना है, पूरा घूमना भी है, देखना भी है, और तब देखते हैं कि मैं पानी पी पा रहा हूं कि नहीं पी पा रहा हूं। यानी इतना बड़ा माइन है, इतना बड़ा हमारा इलाका है, इतना सेंसिटिव वर्क है, और हमको डिसीजन लेना है, काम करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलती ना करें? इतना बड़ा तो हमने पाया कि ऐसा नहीं हो सकता। जाने में चाहे अनजाने में, थोड़ा चाहे ज्यादा, मछली को पानी पीना ही पड़ रहा है, या वो चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पा रही है, मछली पानी पीना पड़ रहा है उसको, या पी लेती है। तो मैंने सोचा कि ये तभी पॉसिबल है जब मछली तालाब से बाहर आ जाए, तभी ये जब पानी नहीं पी पाएगी। यानी यदि जो निकम्मा है वही गलती नहीं करेगा, यानी फैन वही गंदा नहीं होगा जो नहीं चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड,
ऐसा मछली नहीं बनना है जो तालाब के बाहर रहे। अपना कर्म, अपना ड्यूटी। एक और डीपी साहब ने थोड़ा हिंट दिया, अपना कर्म करने में कभी संकोच नहीं करो। आज के डेट में लोग बोलता है बिजनेस की नौकरी खराब है, लेकिन दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है तो मैं हूँ। अपने कर्म से मैं खुश रहता हूँ, अपने काम करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, हैप्पीएस्ट रहता हूँ। अब मैं कहीं संकोच में नहीं रहता हूँ। हमको, मैं बोला ना कि हमको लाइक नहीं करता, लोग डिसलाइक करता है। साहब हमको डिसलाइक करते हैं, लेकिन हम डिसलाइक नहीं करते, हम उनके पास जाते हैं। वो टीटी खेलने कल नहीं आए, हम खोजते रह गए इनको। मतलब हमारा अच्छा टीम था हम लोगों का, वाय नहीं तो हम हार भी गए। यानी आप अपना जो भी ड्यूटी आपको दिया गया है उसको पूरा मन से कीजिए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उसको परिवर्तन करके उसको टॉप क्लास लाइए। एक हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने कभी बोला था कि जो मंत्रालय मुझको मिलता है वो इसी को मैं मालदार मंत्रालय कर देता हूँ। वास्तव में वो आदमी काम करता था, सत्य था। इतना ना ज्यादा इनोवेटिव, इतना ज्यादा आइडिया, उस आदमी ने बहुत काम किया है। यदि हिंदुस्तान में, यदि हम आईटी सेक्टर में इतना टॉप में है, दैट पर्सन का बहुत बड़ा काम है। आप रिसर्च कीजिएगा, पता चलेगा। वो रेलवे मंत्रालय में भी थे, रेलवे मंत्रालय में उन्होंने खूब काम किया। जो मोबाइल आपके हाथ में है उसी आदमी का देन है। अदरवाइज लोग डिसीजन लेना पड़ रहा था कि हम मोबाइल को प्राइवेटाइज की तरफ जाए कि नहीं जाए, तो मतलब वो आदमी आके परिवर्तन किया। वैसे ही आपका एक और, मैं कभी WCL का हिस्ट्री पढ़ रहा था। WCL जो आपका वेस्टर्न कोलफील्ड है, 2012-13 के बाद हालत इसकी ऐसी हो गई थी कि ऑलमोस्ट बंद होने का आधार पर था। 15 में तो गुंजन साहब ने डिसाइड कर लिया कि इसको SECL में मर्ज करके बंद कर देते हैं कंपनी को। उस समय टॉप मैनेजमेंट जो भी रहा होगा उसने डिसाइड किया कि भले दुनिया वालों का, बाकी हमारा कंपनी का क्या है, हम अपना कॉस्ट प्लस वाला पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या पॉलिसी उन्होंने लिया, इनोवेटिव आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वहां के लोगों के साथ रहे, वो उसका लोकेशन का उन्होंने एडवांटेज का यूज किया उन्होंने। जिस तरह से स्टिपिंग रेशियो, जिस तरह से नेगेटिविटी है हमारे WCL में, उसका जो प्लस पॉइंट है उसका उन्होंने यूज किया पूरा। और कॉस्ट प्लस, भले सब लोग अपोज करते रह गए कि नहीं पॉलिसी के अगेंस्ट तुम कैसे जा रहे हो, फिर उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, अदरवाइज हम बैठ जाएंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा डिसीजन लिया कि फिर कोल इंडिया WCL रिवाइव किया। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे को खुशी हो रही है। वो एक बार जो होता है ना, जब अच्छा होता है सब अच्छा होने लगता है। WCL कई साल के बाद डिविडेंड दिया इस साल। BCCL भी डिविडेंड दिया। मतलब अब एज ए CBO में क्यों बोल रहा हूं, मतलब सत्य यही है कि भाई कोई ना कोई है जो काम कर रहा है, जो नीचे से सपोर्ट दे रहा है। कौन है? मैं तो यही मानता हूं, मैं चेयरमैन साहब बताया, जानते हैं कौन आपका स्ट्रेंथ कौन है, अच्छा हो रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। मतलब कोल इंडिया इतना विकास कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, हर फील्ड में लोग आगे जा रहे हैं। कौन है? पूरा मैंने रिसर्च किया, वो आपके 2,30,000 आज के जो आपके कोल इंडियन है वो है, आप है। आपके चलते हमारा कोल इंडिया यदि आगे बढ़ रहा है तो आपके चलते है। एक बार नया मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जब मैं बोलता हूं, तो मैं जब रेलवे ज्वाइन किया तो ऐसी जगह पोस्टिंग कर दिया गया जहां रेलवे ट्रैक बहुत खराब था। मेरा ट्रैक मेंटेनेंस, ब्रिज मेंटेनेंस ये सब का काम था। बिहार के क्यू में मेरा पोस्टिंग हुआ और वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन और ये सब बहुत ही एडवर्स था। मैं 20 पॉइंट का लिस्ट बनाया कि बॉस आ रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगा सर ये खराबी, चाहे पैसा नहीं है, चाहे मटेरियल नहीं है, जो भी बहुत सारा मैंने लिस्ट बनाया और बहुत सारे इशूज में बताया कि सर ऐसा प्रॉब्लम में काम करना मुश्किल है यहाँ पे। वो आए, नया मैं ज्वाइन किया था 2-3 महीना पहले, और मुझको बोले कि मैं कुछ कागज निकाल के हाथ में रखने वाला थे, मैं साहब को बताऊंगा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। हमको बोले कि इफ यू कैन नॉट डू इट, नो वन कैन डू इट। ही वाज हेड ऑफ रेलवेज एट दैट टाइम। उन्होंने ये बात बोला कि आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता है। इंटेंशनली आई हैव पोस्टेड यू हियर इन सच ए डिफिकल्ट पोजीशन। अब मैं उस कागज को फोल्ड करके रख दिया पॉकेट में, फिर अपने टीम के साथ बैठा कि कैसे इसको हम कोकअप करें। तो हमारी टीम इतनी अच्छी थी, जैसे आप अच्छे हैं हमारी टीम अच्छी थी कि हम लगे और उसके बाद इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया था। यानी मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बोलता हूँ कि आप नहीं कर सकते, जितना जीनियस है आप, संघर्षवान है, यदि आप ठीक से नहीं कर सकते तो फिर कोई और नहीं कर पाएगा। हमारे गुंजन साहब को जितना कंप्यूटर का नॉलेज है उसका 50 गुना नॉलेज आपको है, मुझसे 100 टाइम्स ज्यादा आपको नॉलेज है। मेरा बेटा को मुझसे ज्यादा नॉलेज है कंप्यूटर को।
इवन हमारी माता जी को भी ना मोबाइल चलाना और कंप्यूटर में बहुत कुछ करना उनको आ गया, अपने पोती से पूछ कर सीख लिए हैं, और सीखने की इच्छा तो कौन नहीं सीख सकता है। तो आप अपना जो भी आपका विचार है, बुद्धि है, नॉलेज है, आईटी का जो प्रेजेंट दौर है उसको लेकर के आप चले। बाकी टाइम हो गया, फिर कभी मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए, जो युवा लोग हैं, तो एक कविता में पढ़ दूं लास्ट में, हम युवा देश की ताकत हैं, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन करके मानेंगे। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन करके मानेंगे। कर देंगे ऐसा काम जिन्हें, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें, सब मील का पत्थर मानेंगे, सब मील का पत्थर। बहुत धन्यवाद सर, आपने आज के इस प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को निश्चित ही एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आज के इस सभा में आपने काफी सारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे, चाहे वो गीता हो, रामायण हो या महाभारत हो, लीडरशिप का जो ज्ञान है हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी हमें सिखा कर गए हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने रूट्स पर वापस जाएं और सीखें कि लीडरशिप एक्चुअली कैसे की जाती है। सर ने इस बात को बहुत ही बखूबी से अपने संबोधन में प्रस्तुत किया है। सर ने ये भी बताया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और चेंज करने के लिए हम सभी को निडर होना जरूरी है। तो निडर होकर अग्रसित होते रहेंगे अपने पथ पर। इंटेग्रिटी के साथ काम करना अति आवश्यक है। अपनी कंपनी के बारे में, है ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद बिल्कुल भी नहीं करते। तो अपनी कंपनी के बारे में हमेशा अच्छी बातें करेंगे, काम अच्छे से करेंगे, अपने नॉलेज को एनहांस करने में पूरी तरह से फोकस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने संस्कारों को, जो हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने हमें दिया है, उन संस्कारों को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह से हम एक मजबूत स्तंभ स्थापित करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के हर कोने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस बहुमूल्य उद्बोधन के लिए हम सभी अनुग्रहित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार सर के बहुमूल्य समय के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के इस सेशन का आज के इस सेशन को यहीं पर स्थगित करती हूँ। सर, थैंक यू so much. We will keep learning from you and listening to you in another sessions and batches. I promise myself to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. Thank you.